معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو احتجاج کے لیے کالیں دی جاتی ہیں اور کروڑوں لوگوں کو ایک صاحب کا دعوت تھا، صاحب کا بڑے اچھے سیاستدان رہے، ٹھیک ہے ان کے کچھ مائنس بھی ہیں اور کچھ بہت سٹرونگ پلس پوائنٹس بھی ہیں۔ انہوں نے ایک لانگ مارچ کی کال دی اور اس سے پہلے کروڑوں لوگ اور ان کے جلسے اتنے بڑے بڑے ہوئے، لیکن سوال یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کال دینے کا آبجیکٹو کیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، اس واقعے پر ان کا کال نہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کروایا، اس میں جو کچھ حکومت نے کیا، موجودہ حکومت نے، وہ انتہائی قابل شرم ہے جو کچھ کیا گیا ان کے ساتھ۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے دعا زہرا کا، ہم نے اس پر ایک ہی کلپ کیا تھا، اس کے بعد ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ منقطع تھا تھوڑے عرصے۔ دعا زہرا کس کی بچی ہے؟ کیا وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے؟ مائنورٹیز تک، ہندو اور کرسچن لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی وہ بچیاں بھی، اور سب کا ایک جیسا واقعہ ہے۔ سب کو لے جا کر پنجاب میں ان کے نکاح کرائے جا رہے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، پورا ملک چیخ رہا ہے، پورا ملک چیخ رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پہ ڈالرز اکٹھے کرنے والے کچھ میں کیا کہوں جاہلوں نے یہ مسئلہ ان کو مل گیا ہے، وہ مختلف طریقوں سے اس کو پینٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو۔ لیکن مجھے بتائیں عمران خان صاحب، آپ نے ایک دن اس واقعے کی مذمت کی؟ کیا آپ نے ایک دن بھی لوگوں کو کال دی؟ آپ کو اپنی اس طاقت کا پتہ تھا، اپنی آواز کی طاقت کا آپ کو علم تھا، آپ چاہتے تو آپ لوگوں سے کہتے یہ ہماری بچی ہے، اس کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر جب اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا پتہ بیٹی کیا ہوتی ہے، تو لوگ صحیح کہتے ہیں میرا خیال ہے۔ واقعی آپ کو نہیں پتہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس کے یہ جو واقعہ ہوا اس نے اس پورے قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس واقعے کو ایک اور رنگ دینا چاہتے تھے۔ محرم قریب آ رہا ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ سیکریٹیرین مسئلہ بن جائے، جب تک محرم آئے یہ چلتا رہے، چونکہ سندھ پولیس کا سب سے پیتھیٹک کردار رہا اور انہوں نے اپنے ایک آئی جی کے ٹرانسفر کا جس طریقے سے بدلہ لیا ہے اس بچی اور اس کے والدین سے، وہ قابل مذمت ہی نہیں قابل شرم ہے، اور لعنت ہے جن کو میں اس قدر میں کہتی تھی غلام نبی میمن تو بہت اچھی شہرت کا حامل ہے، آئی جی جو نیا لگا ہے، اور اس کی کمپٹنس کی بھی بڑی تعریفیں سنی تھی، بہت اچھی شہرت کا حامل آئی جی، مگر لعنت ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر غلام نبی میمن، ہزار بار لعنت ہے جو کچھ تم نے تمہارے اشاروں پر تمہاری پولیس نے یہاں کیا۔ وہ بچی تمہاری کسٹڈی میں دی گئی تھی لاہور سے لا کر، تم چاہتے، اور جو کچھ کورٹ نے کیا اس پر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے، تم چاہتے تو تم پنجاب پولیس کو حوالے کرنے کے بجائے کورٹ نے کہہ دیا تھا۔ اور جج صاحب جو ہیں جنید غفار صاحب، آپ کو اس بچی کا بیان اپنے چیمبر میں لینا چاہیے تھا، پہلے اکیلے میں بیان لیتے اس سے، 2 گواہوں کو بٹھا کر، اس کے بعد اس کے والدین کو بٹھا کر اس سے بات کرتے۔ آپ نے کیا کیا؟ بس 2 منٹ اس بچی سے بات کی اور کہاں جہاں تم جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ 14 سال کی بچی، آپ کی 14 برس کی بچی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے صحیح کہا نا کہ ایک کلیئرنگ ایجنٹ جو جج بنا دیا گیا اس لیے کہ اس کا بھائی بھی کلیئرنگ ایجنٹ تھا اور وہ چیف جسٹس کا بھائی تھا، جسٹس مشیر عالم کا، انہوں نے آپ کو جج لگا دیا تھا۔ میں آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر رہی، اس کے باوجود اگر آپ اس گفتگو پر میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہیں آپ لگائیے، میں آتی ہوں کورٹ میں، لگائیں کنٹیمپٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کیا اور کس کے کہنے پر کیا۔ شرم کی بات ہے،
जिन लोगों के आसरे पर ये मुल्क बैठा है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा, कम से कम अदालतों से तो इंसाफ मिल जाए। पुलिस से लोगों की आस खत्म हो गई थी। अभी एक ऐसा भी वाकया हुआ कोई 3 महीने पहले, एक डीआईजी साहब ने इतना बेहतरीन काम किया कि मैंने कहा नहीं, कराची की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं नाम ले देती हूँ, डीआईजी थे यहाँ पर रियाज साहब, वो फिर ट्रांसफ़र हो गए उस चीज़ में, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते में अपने एक एसएचओ को ऑर्डर किया। एक वाक़या था, मैं उसका पहले जिक्र कर चुकी हूँ, जो हमारे पास सराय की बेल्ट की जो मुलाजमाएँ आ रही हैं और वो जो कुछ यहाँ हो रहा है उस पर मैं 3-4 प्रोग्राम कर चुकी हूँ और वो अभी इन पाइपलाइन है। उस पर भी गुलाम नबी मेमन साहब से मैंने बात की तो कहने लगे हाँ आप ऐसे करें कि मुझे लिख कर भेज दें। भेज दिया मैंने, कोई अता पता कुछ नहीं। चूँकि अब ठीक कहते हैं लोग कि पुलिस मिली हुई थी, मिली हुई है, लेकिन चंद अच्छे पुलिस वाले एसएचओ जिसे लोग बहुत बुरा समझते हैं, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। लेकिन यहाँ एक एसएसपी था, उसका नाम था जुबैर शेख। उसने कहा हम तो पैसे दे के तो हम पोस्टिंग करवाते हैं, हम कहाँ से निकालेंगे पैसा, यही केसेस जो हैं इन्हीं की वजह से तो हमें पैसा मिलता है। तो जनाब आली, ये सब बातें जो है ना ये अब खुलेंगी, अब लोग खामोश नहीं रहेंगे और उन्हें इमरान खान बाहर नहीं निकालेगा, कोई और ताकत है जो इन सब को बाहर निकालेगी, लोगों को शर्म दिलाएगी। निकलेंगे, अपनी ज़रूरतों के लिए निकलेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है ना, अब आएंगे सड़कों पर बाहर। अभी तो 2 लोगों ने रिक्शा जलाया है ना अपना, अब और बहुत कुछ जलाएंगे लोग, अपने घर जलाएंगे, आप देख लीजिएगा, अपने बच्चों को जलाएंगे, ख़ुदकुशियाँ करेंगे। जनाब आली, एक ख़ातून हैं इस हुकूमत की जिन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि उनके जो चेयरमैन साहब हैं जरदारी साहब, उनको शियों का वोट मिल जाए कराची से, उन्होंने इस बच्ची दुआ जहरा के मामले पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। उस दिन कहाँ मरी हुई थी वो और उनकी पार्टी, और वो बिलावल कहाँ मरा हुआ था और वो आसफा कहाँ मरी हुई थी, जिनकी तरफ से उन्होंने कहा था बिलावल और आसफा बड़े फिक्रमंद हैं दुआ जहरा के लिए। फिक्रमंद थे तो सिंध पुलिस को ऑर्डर करते कि ये बच्ची अब हमारी कस्टडी में है, ये सिंध पुलिस के पास है। पंजाब पुलिस से वो जो सफ़ेद कपड़ों वाले की बड़ी शोहरत है जो आया था, उसको कहते रुको यहाँ पर, अब ये हमारे सूबे में आ चुकी है, हम इसको देखेंगे इस मामले को। ऐसा तो जरदारी साहब ने कुछ भी नहीं किया। तो जरदारी साहब ज़रा आप शियों के वोट तो अब लेके दिखाएं। शैला रज़ा को तो आपने आगे कर दिया, चूंकि शैला रज़ा शिया, आपने कहा मरेगी तो यही मरेगी आगे। शैला रज़ा उर्दू स्पीकिंग है, कराची की औरत को आपने आगे कर दिया। ये बाकी शीन कहाँ हैं, उनको आगे क्यों नहीं किया आपने? शाजिया मरी कहाँ है, सस्सी पलीजो कहाँ है, शहरी रहमान कहाँ है, ये दूसरी जो है खातून शर्मिला फारूकी कहाँ है? ये सब बड़ी औरतों की, ये बड़ी वुमन एक्शन फोरम की बड़ी बनती हैं थानेदार, कहाँ है अब ये सब? दुआ जहरा के लिए तो किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, सामने किया गया किसको? शैला रज़ा को। इंसेंटिव क्या था? तुम्हें सेनेट का टिकट देंगे, तुमको नेशनल असेंबली का टिकट देंगे, तुम इस मामले को ना पॉइंट स्कोरिंग करो। 23 के इलेक्शन की जो तैयारियां जहां जहां जिस तरीके से हो रही हैं हम सब देख रहे हैं, और वहां लानत भेजती हूं मैं मरियम नवाज तुम पर 1000 दफ़ा, और तुम्हारी पार्टी पर और इस हुकूमत पर जिसने दुआ जहरा के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। तुम्हारा तो बड़ा जो है वो तुम्हारे ऑर्डर्स पे चलता है। जो आपका मिनिस्टर इंटीरियर है राना सनाउल्लाह, जिसके अंडर में पंजाब की पुलिस आती है, तुम्हें शर्म होती ना? मरियम नवाज तुम औरत हो, तुम तो औरत के नाम पे मुझे धब्बा लगती हो। तुम कहती राना सनाउल्लाह को कि ये बच्ची हर सूरत में बाजियाब करो और उसको उसके वालिदैन के हवाले करो, वो नाबालिग बच्ची है, हमारे कानून के हिसाब से वो नाबालिग है। मैं अभी शरीयत तो हमारे यहाँ मुतसादिम है, हमारे यहाँ शरीयत, हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को ये देखना पड़ेगा कि जो फैमिली लॉज हैं, जो फैमिली कोर्ट हैं, उनसे अगर शरीयत के जो कानून हैं वो मुतसादिम हैं तो उसको बराबर किया जाए। वरना तो अब याद रखिएगा, ये बात दुआ जहरा पर ख़त्म नहीं होगी, नहीं ख़त्म होगी ये बात दुआ जहरा पर। अब ये औरों की बच्चियां भी उठेंगी और बेची जाएंगी। उस वक्त मैं देखती हूँ आप कैसे खामोश बैठेंगे। शर्म आनी चाहिए, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। और ये जो वुमेन एक्शन फोरम की जितनी बनती हैं ना औरतें, जो यूएसएड से लेती हैं, एड लेती हैं, उनसे डोनेशंस लेती हैं जाके, और रेप केस पे बड़ी जल्दी बाहर निकल आती हैं। मनीज़े जहांगीर, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी अम्मा तो बड़ी सो कॉल्ड वुमेन राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैंपियन थी, तुमने तो एक आवाज़ भी टेलीविजन से अपने मीडिया से नहीं उठाई। तुम्हारी बहन के तो उसका नाम ही रेप है,
आसमा जिलानी का, तुम्हारी खाला की, वो भी सामने नहीं नजर आई। एक औरत मुझे नहीं नजर आई किसी एनजीओ की जिसने बाहर निकलकर एहतजाज किया हो कि दुआ जहरा के साथ जो कुछ हो रहा है कल वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस बहुत बहुत वक्त करीब है, बहुत जल्दी आप लोग सब अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। हमारी जितनी ताकत थी, हमें जितनी एक्सेस थी, जहाँ जहाँ हम बात कर सकते थे, वो दुआ ज़हरा के मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानती कौन लोग हैं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन उनके महरीन सिप्तैन जो हमारी दोस्त हैं जो लाहौर से जिन्होंने, और मारिया अली को मैं नहीं जानती, लेकिन आई सैल्यूट दिस टू वुमेन, मारिया अली एंड महरीन सिप्तैन, जिन्होंने दुआ मुकद्दम का मुकदमा भी अपने चैनल पर बहुत ही जवां मर्दी से लड़ा और दुआ ज़हरा के मामले में भी वो डट गई हैं। लेकिन तुम सब एंकर्स टीवी की जितनी औरतें और तुम जिस तरह टीवी पे आई हो और तुम्हारी कीमत क्या है वो भी हमें पता है। तो इसलिए ज़्यादा हम मुंह हमारा न खुलवाओ, हम उस पर नहीं जाना चाहते। जब ये बच्ची, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, परवरदिगार, चुके पूरा मुल्क जो कुछ नहीं कर सकता वो उस बच्ची के लिए दुआएं कर रहा है, जो कुछ नहीं कर सकता वो कोनों में बैठे हुए अपने घरों में इस बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है परवरदिगार ने हमारी सुननी है। ये बच्ची ज़रूर अपने वालिदैन के पास आएगी और वो ज़हीर जैसे बेशरम और गंदी मालियों की और चपड़ासियों की और घटिया किस्म के लोग इस तरह छलांगे मारेंगे, अब किसी की बच्ची अगवा करके उसको पहुंचाएंगे दूसरी जगह, डाक माफिया तक, और जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये तो मसाला है ना बहुत बड़ा। इस मुल्क में इस तरह के मसाइल जो हैं वो मसाइल नहीं हैं, सोशल मीडिया के आने से अब ये मसाला बन गए हैं, मसाला बन गए हैं। ये प्रोडक्ट बेची जा रही है, ये प्रोडक्ट इसलिए बेची जा रही है कि इसे डॉलर्स बहुत मिलते हैं। हमारे चैनल को आखिर तक सब्सक्राइब कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, एंड तक इसको, क्योंकि वो एंड तक देखेंगे तो जितना वो टाइम कंज्यूम होगा आपके डॉलर भी तो बढ़ते हैं ना। लानत है ऐसे डॉलर्स पर, और लानत है तुम्हारी इस सोच पर, तुम्हारी जहालत पर। हर आदमी के हाथ में बावलों के गांव में ऊंट आ गया है, जिसको देखो वो सोशल मीडिया पे बैठकर जो है वो अपनी लंतरानियां कर रहा है। ना जर्नलिज्म के स्पेलिंग आते हैं, ना जर्नलिज्म के बारे में पता है वो क्या चीज़ है। सुनेंगे तो शर्म से डूब के मरेंगे। ये सहीफे का इल्म है, सहाफत सहीफे से लिया गया है, ये कुरान का इल्म है। सूरह रहमान निकाल कर पढ़िए, अल्लमाहुल बयान, बयान का मतलब है मीडिया। हम तुम्हें एक नेमत अता कर रहे हैं, बयान कम्युनिकेशन, वो सहाफत तक आती है बात। हम तुम्हें एक नेमत अता कर रहे हैं, और फिर आगे हर नेमत की बात खुदा ने कहा, फ़बे ये लाए रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, तुम हमारी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो ये झुटलाई जा रही है ना नेमतें, और क्या हो रहा है, तो झुटलाओ, फिर मज़ा भी चखना मज़ा तुम इस नेमत के झुटलाने का। बस आज इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। अगर शर्म है हमारी सियासी पार्टियों में, और बिलखुसूस इमरान खान, आप ज़रा आप बुलाएं लोगों को, हम आपके मुकाबले पे आएंगे, चूँकि हमने भी आपको बहुत सपोर्ट किया कि चलें लोग आपके साथ आ गए हैं, आप हक पर हैं, बहुत सारे मामलात में आप हक पर हैं, नो डाउट। लेकिन एक आवाज़ उठाई आपने। आप तो लोगों के जनाजों में भी वैसे नहीं जाते थे बलूचिस्तान, चूँकि आपकी वो जो रूहानी बानो हैं उन्होंने आपको जो तावीज़ दिए हुए थे ना कि जी जनाजे पे जाने से इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, उनकी तो शराफत का अपना जनाजा निकल चुका है, पिंकी बेगम का। तो माफ़ कीजिएगा, ये गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप हाकिम थे इस मुल्क के, आपने जिस तरह बलूचिस्तान में आप जनाजों पर नहीं पहुँचे, हमारे पास वो भी महफूज है। आपका वो जो किरदार है ना वो भी हमारे पास महफूज है इमरान खान साहब। तो मेहरबानी कीजिएगा, सोचिएगा आप क्या कर रहे हैं। अब लगाइए आप एक आवाज़। सब कहेंगे ये इक़्तिदार के लिए लोगों को बाहर निकाल रहा है, इक़्तिदार के लिए लोग मर रहे हैं, खुद एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर बैठा हुआ है, बाकी लोग धूपों में मर रहे हैं, आंसू गैस के शेल जो है ना उनको बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को लेके औरतें पहुंची हुई हैं आपके लॉन्ग मार्च में। आप बुलाइए ज़रा, बुलाओ तुम लॉन्ग मार्च, कल है ना तुम्हारा, एक कल एहतजाज है तुम्हारा, खामोश रात को ठंड में बुला लिया, बड़ी मेहरबानी की कि रात के 9 बजे आ जाना। लेकिन अब जो तुम लॉन्ग मार्च की कॉल दोगे ना, तो अब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए लोगों को जमा करते हो। जो इस मुल्क के कॉज हैं, जो इस मुल्क के जेन्युइन कॉज हैं, जो मॉरल कॉज हैं, जो सोशल कॉज हैं, उनका आपको कोई ख्याल नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। खुदा हाफ़िज़।